وہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی تھی، نہایت معصوم اور خوش مزاج لڑکی، جو زندگی کو جینا جانتی تھی اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، کیونکہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ اور بھائیوں نے اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور اس سب کے باوجود بھی وہ بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار لڑکی تھی اور نہایت ہی پاک باز اور نیک تھی۔ پورا محلہ اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اور جوان ہوئی تھی، اور پھر اس کے والدین نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ خوش تھی، تھوڑی شرمائی ہوئی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ اس کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہوا تھا، بہت ہی امیر فیملی اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس کی ماں اتراتی پھر رہی تھی، مگر اس کے اترانے اور نخرہ کرنے پر کسی کو برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی سب کو بہت پیاری تھی۔ سب اس کے لیے دل سے دعا گو تھے اور اس کی شادی میں پیش تھے۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، وہ لڑکی گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے والدین کا گھر چھوڑنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہے، اور پھر وہ تو اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی اور یکسر انجان گھرانے میں بیاہی جا رہی تھی۔ اس پر اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ تبھی جیسے دن قریب آ رہے تھے، وہ اکثر ہی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی تھی۔ سبھی اسے تسلیاں دینے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی کزنیں، سہیلیاں اس کو چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو پرسکون کرنا چاہتی تھیں۔ وہ اس کو چھیڑتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت خوش رہو گی، دیکھنا پہلی رات ہی وہ تم پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی ماں بھی اس کو تسلیاں دیتی تھی کہ لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، تم بہت خوش رہو گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب سے اس کا رشتہ ہوا تھا، اس کی ساس آئے روز ان کے گھر پائی جاتی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کا ماتھا چومتی اور کہتی تھی، یہ تو میرے بیٹے کی لاڈلی بیوی بنے گی، تم اتنی حسین ہو، وہ تو پہلے ہی دن تم پر فدا ہو جائے گا۔ اس کی حسین لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ غرض ایسی باتیں سن کر وہ تھوڑی پرسکون ہوتی تھی، مگر پھر بھی بہت پریشان تھی۔ مجھ سے اس نے قرآن پاک پڑھا تھا، اسی لیے جب بھی زیادہ دل گھبراتا تو میرے پاس آ جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ میرا دل بہت گھبراتا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ تب میں اس کو پیار سے دلاسا دیتی اور کہتی تھی کہ تم پریشان نہ ہو، ہر بیٹی کا دل ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، مگر پھر شادی کے بعد وہ پرسکون ہو جاتی ہیں۔ تم بھی پرسکون ہو جاؤ گی، بہت خوش رہو گی، جتنی اچھی تم ہو، تم سب کے دل میں گھر کر لو گی۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرا دیتی، مگر اس کی مسکراہٹ بھی پھیکی ہوتی تھی اور کہتی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل گھبراتا ہے۔ تب میں اسے دلاسا دیتی تھی کہ تم چونکہ اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کی بہت لاڈلی ہو، تو ان کو چھوڑتے ہوئے تمہارا دل گھبرا رہا ہے، اسی لیے تم اداس رہتی ہو، لیکن آگے کی فکر مت کرو، تمہارے والدین نے تمہارا اچھا ہی سوچا ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کر ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہوگا۔ تو میری بات پر وہ سر ہلا دیتی، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ بہت پریشان ہے۔ تبھی ایک روز اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی ماں سے بات کی، مگر اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ بس یہ ہماری جدائی سے پریشان ہے، باقی جتنا اچھا وہ گھر ہے، کوئی ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے اور لاکھوں کا مالک ہے، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ اس کی ماں کی بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا کہ اس نے صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، مگر میں نے زیادہ بحث نہیں کی اور دل سے اس کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کی شادی پر خوب خرچہ کیا ہوا تھا، نہایت قیمتی زیورات، قیمتی زرق برق ملبوسات کہ دیکھ کے آنکھ خیرہ ہو جائے، اور ہر طرح کا ضروری اور غیر ضروری سامان بھی لیا ہوا تھا۔ فرنیچر ایسا کہ پورا محلہ اش اش کر اٹھا۔ شادی کے انتظامات بھی خوب کیے تھے کہ آنکھیں دیکھ کر چندھیا جائیں۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ہر فنکشن بہت ہی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مہندی کا فنکشن اتنی دھوم دھام سے کیا کہ پورا محلہ آنکھیں پھاڑے ان کی شان و شوکت دیکھتا رہا، اور اگر لڑکی کے والدین نے خوب تیاری کی ہوئی تھی تو کم لڑکے کے گھر والے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی خوب پیسہ لٹایا تھا اور فلموں ڈراموں کی طرح مہندی کی رسم ادا کی تھی، اور پھر اگلے روز رخصتی تھی۔ لڑکی کو مہنگے پارلر سے تیار کرایا گیا۔ قیمتی سرخ لہنگے میں سجی سنوری وہ انتہائی حسین آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ رخصتی کا ٹائم جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، لڑکی کا رونا دھونا بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس کے بھائی اور ماں باپ بھی بہت اداس اور پریشان تھے۔ ان کے گھر کی اکلوتی بیٹی آج رخصت ہو رہی تھی اور وہ پرائے گھر کی ہونے جا رہی تھی، تو دکھی ہونا تو بنتا تھا۔ میری بھی آنکھیں نم تھیں، وہ بچی مجھے بہت عزیز تھی، بہت عزت کرنے والی۔ پھر رخصتی کا شور اٹھا تو لڑکی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا، جس پر اس کے والدین پریشان ہو گئے اور ساس اس کو دلاسے دیے جا رہی تھی کہ تم کیوں روتی ہو، ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے اور رانی بن کر راج کرو گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ہی وہ لڑکی کے والدین کو بھی دلاسے دیتی تھی کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ مگر لڑکی کے دل کو کسی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا، بار بار ماں کے گلے لگتی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ابھی وہ یہ رشتہ ہی ختم کر ڈالے۔ دلہا خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دلہن کے رونے کی وجہ سے اس کا دولہا کوفت میں مبتلا لگ رہا تھا۔
ऐसे लग रहा था जैसे इसे बेजारी हो रही है। उसके चेहरे के तासुरात भी कुछ अजीब से थे। तब उसने अपनी माँ को इशारा किया कि जल्दी चलने की करो। नागवारी से उसने एक नज़र दुल्हन पर डाली। कभी मुझे लग रहा था शायद ये मेरा वहम है, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। बस शायद वो इसकी रोने की वजह से परेशान हो रहा था। तभी लड़की के वालिदैन ने लड़की को दिलासा दिया और प्यार से गाड़ी तक पहुंचाया, और वो हिचकियों से रोती हुई हमेशा के लिए घर और मोहल्ला छोड़ गई। अगले रोज़ लड़की के वालिदैन, भाई और करीबी रिश्तेदार इसके लिए नहायत शानदार सा नाश्ता तैयार करके लड़की के पास पहुंच गए। उसकी माँ तो बहुत बेताब थी कि उड़कर अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। वो 9 बजे इनकी रवानगी हुई और मोहल्ले की तमाम खवातीन भी दरवाजे पर नज़र जमाए ठहरी थीं। लड़के का घर बहुत दूर था और जाते जाते फ़ौरन कोई वापस भी नहीं आता। इसको वापसी पर बहुत सारा टाइम लग जाना था। मैंने भी यही सोच के जल्दी से अपने घर के तमाम काम निपटाना शुरू कर दिए, ताकि इनके आने से पहले पहले अपना घर समेट लूँ और फिर इनके पास जाकर इस बच्ची का हाल अहवाल पूछूं कि वो कैसी है, खुश है या नहीं। अभी मुझे काम करते हुए घंटा ही गुजरा होगा कि बाहर गली में गाड़ियां रुकने की आवाज़ें आईं और साथ ही ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगीं। मेरा दिल धक से रह गया और मैं अपना काम वहीं छोड़कर बाहर की तरफ भागी थी और घर से बाहर देखने लगी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि लड़की के घर और ख़ानदान वाले वापस आए थे और खुशो खुरम वापस लौटने की बजाय अपनी बेटी की लाश लेकर आए थे। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए थे और मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। वो लड़की मर चुकी थी, मगर कैसे? रात तक तो बिल्कुल ठीक थी और आज इसकी लाश लाई गई थी। मेरा दिल शदीद गम से भर गया था और मैं रोने लगी थी। फिर मैंने जैसे तैसे अपने घर को समेटा और चादर ओढ़कर इनके घर की तरफ दौड़ी। मोहल्ले की और औरतें भी तेजी से इनके घर की तरफ जा रही थीं और साथ ही साथ सरगोशियां भी हो रही थीं कि ये क्या हो गया। रात तो बच्ची रुखसत हुई थी और आज इसकी मौत ही वाकई हो गई, और वो भी इतने अचानक। वैसे तो सबको लग रहा था कि तबई मौत है, अल्लाह की तरफ से इसको ज़िंदगी ही इतनी मिली थी, मगर वहाँ जाकर हमें हकीकत पता चली जो सुनकर मेरे औसान खता हो गए थे। लड़की की माँ रो रही थी और अपने बालों को नोच रही थी। लड़की का बाप भी दीवार से टेक लगाए जिल्लत और शर्मिंदगी की मिसाल बने फूट फूट कर रो रहा था, और इसके भाई पागल हो रहे थे और एक ही रट लगा रहे थे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे और इनको जिंदा दफन कर देंगे। हम सब ये देखकर सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं जैसे तैसे भीड़ में जगह बनाकर लड़की के पास पहुंची और इसका चेहरा देखा तो मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस पर जुल्म हुआ था, और इस जुल्म की दास्तानें इसके वजूद पर रकम थी। साफ पता चल रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। वो बच्ची जुल्म से मरी थी। इस घर पर क़यामत टूट पड़ी थी। उनकी एक इकलौती बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं इस बच्ची की सच्चाई जानकर ज़लज़ले की ज़द में थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हुआ क्या है। मैं उसकी हालत के बारे में जानना चाहती थी, मगर यह मुनासिब वक्त नहीं था और ना ही इसके घर वाले इस वक्त होश में थे कि किसी को कुछ बताते। बस उड़ती उड़ती बातें इतनी सुनी कि इसके शौहर ने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और वो मर गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि जवान बच्ची की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी और इसकी नागहानी मौत की वजह अभी तक समझ नहीं आई थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी कि जाने इस मासूम के साथ हुआ क्या था। मेरी तरह मोहल्ले की बाकी औरतें भी ऐसे ही बेचैन थीं और वजह जानना चाहती थीं, मगर उनके घर वालों का जो हश्र था, इस पर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ये बात पूछ सकते। लिहाजा सब खामोश थे और इनको दिलासे दे रहे थे। इन लोगों का दुख बहुत बड़ा था। उनकी इतनी प्यारी बेटी ऐसे अजियत की मौत मरी हुई थी। इसके भाई पागल हो रहे थे। फिर इनकी कुछ बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़का और इसके घर वाले गायब हो चुके थे और इनका कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहाँ गायब हुए हैं। इन लोगों ने पूरी कोशिश की हुई थी कि इन लोगों तक पहुँच जाएं। हम सब का भी दुख और तकलीफ से बुरा हाल था। सोचा भी नहीं था कि कल तक जो ठीक ठाक थी अचानक दुनिया से चली जाएगी। तब मुझे उसकी घबराहट, उसकी परेशानी याद आई थी। शायद बेचारी को पहले से अंदाज़ा हो गया था कि उसका वक्त पूरा हो चुका है, तभी इतनी बुरी तरह से रो रही थी। हम सब दिल से इनके दुख में शामिल थे। हम इन लोगों का दुख समझ सकते थे जिन्होंने अपनी बेटी को इतनी चाहत से पाला था। उन्होंने क्या सोचा था और अंजाम क्या हुआ। फिर मुझे उनकी कुछ अजीज रिश्तेदारों ने इस लड़की को गुस्ल देने का कहा, और जब मैंने इस लड़की को गुस्ल कराना शुरू किया तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि इसकी हालत बहुत बुरी थी। मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, चुपचाप गुस्ल दिया और फिर बच्ची का जनाजा उठाया गया। दिन ऐसे ही अफसुर्दा और गमगीन से गुजर रहे थे, और फिर एक रोज़ पता चला कि लड़की के कातिल ससुरालियों का पता चल गया है और वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बात सुनकर मैं भी इनके घर की तरफ दौड़ी थी कि जान सकूं कि इस जुल्म की वजह क्या थी। इस घर में एक बार फिर से सफ़े मातम बिछ चुकी थी और फिर इसकी दर्दनाक मौत की हकीकत जानकर मैं बहुत दुखी हुई थी। लड़की की माँ तकरीबन पागल हो चुकी थी। मैं इसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुई थी। इस माँ का पागल होना बनता था जिसने अपनी बेटी को
आखिरी दिन तक फूलों की तरह संभाल कर रखा हुआ था। हथेली का छाला बनाकर रखा और अपनी बेटी को सबसे बेहतरीन समझती थी। और आज वही बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी और इसकी दर्दनाक मौत की हकीकत भी पता चल गई थी। और जब वो हकीकत मुझे पता चली तो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिल फटने वाला हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना दरिंदा सिर्फ शख्स होगा, क्योंकि इस दरिंदे ने पहली रात ही पूरे 2 घंटे इस लड़की के साथ। मेरा नाम साइमा है। मैं कराची की रहने वाली हूँ। शादी से पहले मैं एक मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी और फिर मेरी शादी हो गई और मैं ब्याह कर ससुराल फैसलाबाद आ गई। यहाँ पर मैंने मदरसे में तो नौकरी नहीं की थी, क्योंकि मेरे शौहर मेरी नौकरी के हक में नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं बस घर पर रहूं, क्योंकि इनके पास अल्लाह का दिया बहुत था। तब मैंने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक तो कुरान पाक पढ़ाने का सवाब था और दूसरा मुझे कुरान पाक पढ़ाने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं कुरान पाक पढ़ाए बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जल्द ही वो सारी बच्चियां मुझसे मायूस हो गई थीं। वो लड़की हिरा भी इन्हीं में से थी और शुरू से ही मुझे बहुत प्यारी लगी थी। वो 7 साल की प्यारी सी बच्ची थी और 7 साल की ही थी, मगर इतनी ही छोटी उम्र में भी वो बहुत इज्जत से पेश आती थी। मैंने कभी इस बच्ची को बदतमीजी करते या कोई गलत हरकत करते नहीं देखा था। बहुत ही सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। हालांकि वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी और 4 भाइयों की इकलौती बहन। इसके बावजूद भी बहुत समझदार थी। मुझे इस बच्ची पर बहुत प्यार आता था और सब बच्चों की निस्बत मेरा इससे ज़्यादा लगाव हो गया था। वो भी मुझसे बहुत मायूस हो गई थी। उसका ये लगाव देखकर इसके घर वाले भी मेरी दिल से इज्जत करने लगे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और वो बच्चियां मेरी आंखों के सामने जवान हुईं और मैंने इस लड़की में कोई भी बुरी आदत नहीं देखी थी। इकलौती होने के बावजूद भी किसी गलत सरगर्मी में पड़ी नहीं थी वो, बल्कि वो बहुत बापर्दा लड़की थी और हमेशा तरीके से रहती थी। मोहल्ले की और लड़कियां भी बहुत अच्छी थीं, मगर वो कभी कभार फैशन कर लिया करती थी। मगर एक वो लड़की थी जो कभी फैशन भी नहीं करती थी, बल्कि हमेशा सादगी में ही रहती थी। उसका कहना था कि मुझे सादा रहना अच्छा लगता है। वो इतनी मिलनसार थी कि जो भी एक बार इससे मिलता था वो इसका गर्विदा हो जाता था। वो अपने पूरे मोहल्ले का बहुत ख्याल रखती थी, सबसे बनाकर रखती थी। इसकी वजह से मोहल्ले के सारे लोग इनके घर बहुत ज़्यादा आते जाते थे और इसकी बहुत इज्जत करते थे। वरना इसकी माँ थोड़ी नकचड़ी और मगरूर सी थी, लेकिन ये खूबी इसकी भी थी कि उसने अपनी बेटी को कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका था, बल्कि जब वो भी अच्छाई कर रही होती थी तो इसकी माँ खुश होकर इससे शाबाशी देती थी। वरना तो अमूमन माएँ अपनी बच्चियों को गलत राह पर चलाने की कोशिश करती हैं, मगर वो ऐसी नहीं थी। वो खुद मगरूर ज़रूर थी, लेकिन बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई थी और इसे खूब ऐश की ज़िंदगी दी थी और फिर 20 साल की उम्र में उसका एक बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता तय कर दिया। तब भी इसकी माँ हवाओं में उड़ी फिर रही थी कि लड़का बहुत अमीर है, बहुत पढ़ा लिखा है। मैंने एक बार बच्ची के परेशान होने पर इसकी माँ से कहा था कि बेहतर यही होता कि अगर आप लड़का नेक और दीनदार ढूंढते, क्योंकि जो बंदा दीन को समझता है वो औरत की इज्जत भी करता है और रिश्ते की पहचान भी करता है। मगर उसकी माँ को मेरी बात बहुत बुरी लगी थी और इसने साफ कह दिया था कि अगर मर्द पढ़ा लिखा और पैसे वाला हो तो अपने घर वालों को खुश रख सकता है, और मैंने कौन सा गली का गुंडा मवाली अपनी बेटी के लिए चुन लिया है जो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लाजमी नहीं कि सिर्फ मौलवी ही औरत को खुश रख सकता है। उसकी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हुई थी और मैंने माजरत कर ली कि मैं बस आपकी बेटी को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए इसकी फ़िक्र में ऐसा बोल रही हूँ। और इसके बाद मैंने इन लोगों के किसी मामले में बात करने की कोशिश नहीं की। बस इस बेटी के लिए दिल से दुआ करती थी कि अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। ये बात भी मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं जानती थी वो बच्ची किस किस्म की है। वो बहुत मासूम और सादा सी बच्ची थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो इन लोगों के साथ गुजारा नहीं कर पाती। मैं चाहती थी जितनी अच्छी और मासूम वो लड़की है, इसको इसी के जैसा हम सफ़र मिले जो इसका कदरदान हो। पहले पहल तो बच्ची बहुत खुश नज़र आती थी, लेकिन जैसे ही शादी करीब हो रही थी वो परेशान रहने लगी थी और अक्सर मुझे कहती थी कि जैसे दूसरी लड़कियों को अपनी शादी की खुशी महसूस होती है, मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, बल्कि अनजाना सा खौफ है और अजीब सी घबराहट जिसने मुझे अपने हिसार में ले लिया है। यूँ लगता है कि जैसे मैं घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती करूँगी। तब मैं इस बच्ची की बात सुनकर इसको दिलासे देती कि घबराहट में हर लड़की ऐसा सोचती है और तुम अपने घर वालों की लाडली हो, इसीलिए ऐसा सोचती हो। जब शादी के बाद तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत खुश रखेगा तो तुम्हारा दिल लग जाएगा और फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने वालिदैन के चुने गए रिश्ते पर दिल से राज़ी हो रहो। तब मेरी बात सुनकर वो भी चुप हो गई थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसकी परेशानी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। खैर, शादी का दिन आन पहुंचा। इसके वालिदैन ने इसकी शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और बहुत धूमधाम से अपनी बेटी को रुखसत किया था। रुखसती के वक्त भी वो बहुत ज़्यादा रोई थी और बार बार पलट कर
अपने वालिदैन को मिल रही थी। इस पर इसके माँ बाप भी परेशान हो रहे थे, लेकिन चूंकि शादी मुकद्दस फरीज़ा है और ये करना भी ज़रूरी है, तो उन्होंने भी अल्लाह का नाम लेकर अपनी बेटी को इसके ससुराल रुखसत कर दिया। और सुबह जब इसके घर वाले इसके लिए नाश्ता लेकर गए तो एक क़यामत इनकी मुंतज़िर थी, क्योंकि जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी बेटी मरी हुई कमरे से मिली थी, और ऐसे मिली थी कि इसके पैर बारीक तार से सख्ती से बंधे हुए थे। इस तार की गिरफ्त इतनी गहरी थी कि पाँव के अंदर भी खुबी हुई थी, और इसके दोनों हाथ पूरी तरह से टूटे हुए थे, और इसका पूरा बदन लहूलुहान था, और सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो लड़की मर चुकी थी और इसके ससुराल वाले गायब थे। वालिदैन ने जब अपनी बेटी की ये हालत देखी तो तड़प उठे और इसको फौरन अस्पताल ले गए, मगर उन्होंने बताया कि 6 घंटे पहले ही वो मर चुकी थी और 6 घंटे पड़े रहने से इसका जिस्म अकड़ चुका था। फिर वो अपनी बेटी की मैयत को लेकर रोते बिलखते घर आए। इसकी हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। कोई भी एक नज़र से बाद दूसरी इसको देख नहीं पा रहा था। इसका पूरा जिस्म नीलो नील था और यूं लगता था जैसे इसके पूरे जिस्म को नोचा गया हो। सभी इसकी हालत देखकर बहुत तकलीफ में आ गए थे, और इसके माँ बाप की तो हालत ही ख़राब थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर वो लोग कहीं मिलकर नहीं दे रहे थे, और बिलाखिर कुछ रोज़ के बाद वो दरिंदा सिफ्त आदमी और इसके घर वाले मिल गए। वो शहर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और तभी पुलिस के हाथों आ गए, और जब पुलिस ने इनको बुरी तरह से मारा पीटा तो तब उन्होंने मुँह खोला और जो कुछ बताया वो रूह लर्जा देने वाला वाक़या था। उनका बेटा बहुत शक्की मिजाज था और तंग जहन का आदमी था, और लड़की जब अपनी रुखसती पर रो रही थी और बार बार अपने वालिदैन से कह रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी, तो इसको ये लगा कि शायद लड़की किसी और में इन्वॉल्व है। इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती, और इसने बिना सोचे समझे और बिना कोई सवाल जवाब किए कमरे में जाते ही इस मासूम का जीना हराम कर दिया। वो इसको मारता जाता था और यही पूछता था कि बता कौन है जिसके लिए तू इतना मर रही थी और मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। और वो मासूम दर्द की शिद्दत से रोती चीखती रही कि मैं किसी को नहीं जानती और ना ही मेरा किसी से कोई चक्कर है। मगर इस जालिम ने जरा भी तरस नहीं खाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके दोनों पांव बांध दिए और इसके जिस्म को पूरी तरह से नोचना शुरू कर दिया, और फिर हाथों की मेहंदी देखकर तो जैसे पागल हो गया। इसके दोनों हाथों को पूरी तरह से जख्मी करके तोड़ दिया, और जब मार मार कर थक गया तो इसका सर दीवार पर दे मारा और वो इसी वक्त मर गई। और इसके मर जाने के बाद वो दरिंदा आदमी होश में आया और बाहर अपने वालिदैन के पास भागा, जो शोर शराबा सुनकर परेशान थे और मुसलसल दरवाज़ा पीट रहे थे। तो जब इनके बेटे ने बताया कि वो लड़की मर चुकी है, तो जालिम लोगों ने बजाय इसके कि अपने बेटे को सरजनिश करते और लड़की को फौरन अस्पताल ले जाते, वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग गए और चुपचाप शहर से फरार होने की कोशिश करने लगे थे, क्योंकि इनको बस अपना इकलौता बेटा ही प्यारा था। और अब वो तीनों बाप, माँ और बेटा हवालात की हवा खा रहे थे। लड़की के घर वालों ने बेटी की पूरी हालत पुलिस को बताई थी और इन पर तशद्दुद और कत्ल का केस हो चुका था, जिसकी बिना पर इन तीनों को 20 साल की कैद सजा हुई। और शायद लोग भूल चुके थे बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, और काश लड़की के माँ पैसे वाले ढूंढने की बजाय एहसास वाला आदमी ढूंढती तो वो इसकी बेटी के साथ ये हाल ना करता। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी। बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। वालिदैन पहले पूरी तसल्ली कर लें कि इनका बेटा किसी की फूल जैसी बेटी को खुश रख सकता है, तभी वो दूसरों की बच्चियों को शादी करके अपने घरों में लाएं। ऐसा नहीं कि घरों में लाकर पराई मासूम बच्चियों को बेजारों मददगार छोड़ दिया जाता है और इन पर जुल्म सितम किए जाते हैं। इनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं किए जाते, यहाँ तक कि खाना तक इनको नहीं दिया जाता। लड़का चाहे माजूर हो, पागल हो, नफसियाती हो, चरसी हो, मवाली हो, लेकिन माँ बाप को इसकी शादी करना बहुत ज़रूरी होती है। वो यही कहते हैं कि शादी के बाद सुधर जाएगा। शादी के बाद तो सुधरते नहीं, उल्टा पराई बच्चियों की ज़िंदगी जहन्नम बना डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची को नज़र भी लग गई थी, क्योंकि नज़र तो बरहक है। जब वालिदैन शो ऑफ के लिए, दुनियावी दिखावे के लिए बड़े धूमधाम से शादियां करते हैं और बहुत महंगा जहेज़ देते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि हमने अपनी बेटी को इतना जहेज़ दिया, इतनी धूमधाम से शादी की, इस तरह भी नज़र लग जाती है और नज़र तो खुशियों को खा जाती है। बस तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि पहले अपनी बेटी का मिजाज देखें, फिर इसके लिए इसी हिसाब से रिश्ता ढूंढें। अगर बेटी दीनदार नेक पारसा है तो इसके लिए इसी किस्म का मर्द ढूंढें, क्योंकि ऐसी बच्चियां मॉडर्न मर्दों के साथ गुजारा नहीं कर पाती हैं।